Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, chalo, bye bye. So good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Are you able to see the screen? Yes, sir. Sir. Okay. So yesterday we understood the concept about assets. So let's have some revision. If I purchase the assets, so should I debit purchase account? Yes या no? If I purchase the assets, तो क्या purchase account debit होगा? No, sir. So which account we will debit? Asset account. Asset account. चलो Tanish, if I purchase computer, so which account I will debit? Sir, asset. Asset means computer account, name of the asset. Okay. If I purchase Yes, sir. cycle Swayam, then which account should I debit? Sorry, sir. If I purchase the cycle, then which account should I debit? Asset account. अब पर नाम क्या है उस एसेट का? साइकिल. तो आई विल डेबिट साइकिल अकाउंट. Okay, sir. Okay. Aman. Yes, sir. If I purchase a car, then which account I will debit? Car account. Car account. So जब मैं कहता हूं कि when we purchase asset, debit the purchase account, sorry, debit the asset account, तो it means that कि asset का जो नाम है that should be debited. Okay. ध्यान. If I purchase machinery, so which account I will debit? Machinery account. Machinery. Okay. So yesterday क्या आपने ये ट्राई किया था सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? Yes, sir. Fourth wala, sir. Okay, so let's see whether your entries are correct or not. So bought furniture in cash for rupees 5,000. So बताओ मुझे, you are purchasing furniture, तो डेबिट क्या होगा? Furniture account. Very good. And credit will be which account? Cash. Cash account. Okay. So raise your hand if this entry was correct. Okay. So Tanish, आपकी एंट्री करेक्ट थी? Yes or no? Yes, sir. Very good. Now we have the next one. Bought second-hand scooter for rupees 10,000 and spent rupees 2,000 for its repairs. So what I will do here, I will pass the journal entry number 3. कौन सा account debit? Yes. Scooter account. Scooter account. Perfect. Scooter account debit. And credit Repairing will go to which account? कुछ बोला Cash. नहीं है तो we assume that रुपए Cash क्या है? repair का. Okay, to cash account. हमें तो And cash account. spend 2,000 for repairs. तो याद रखिए कैश तो पूरा 12,000 जाएगा और स्कूटर भी 12,000 का होगा. ऐसा क्यों? 10,000 का स्कूटर था. ओके, लेट्स से स्कूटर का नाम है सखाराम एंड 2,000. देखो हमने Sir, we have increased the capacity. यस, बिकॉज सेकंड हैंड एसेट को रिपेयर कराना जरूरी है. फॉर एग्जांपल हो सकता है सेकंड हैंड स्कूटर में टायर्स प्रॉपर नहीं है या उसमें कुछ एक्सेसरीज नहीं है तो आपने वो ऐड करवाई है, या फिर आपने उसको प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह करवाया है, फ्यूलिंग करवाया है,
ऑयल डलवाया है, सो इट मीन्स सेट कि ये 2000 एसेट की लाइफ को इंक्रीज करेगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस, लाइफ भी इंक्रीज करेगा एंड स्कूटर की वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, हेंस इट इज द एसेट। अच्छा, एसेट एंड एक्सपेंस के बीच में फर्क समझो। सपोज यू आर ए बिजनेसमैन, बराबर, लेकिन आप है ना होटल में अकेले खाना खाने जाते हो, तो वो एसेट हुआ या एक्सपेंस हुआ? एक्सपेंस। Expense. अच्छा, सेकंड सिचुएशन, आप बिजनेस में बराबर मैनेजर हो, बट आप क्या कर रहे हो, आपने एक बिजनेस मीटिंग रखी है, बराबर, और वो एक होटल में है और बिल आपने चुकाया है, तो ये बेसिकली ये जो आप स्पेंड कर रहे हो खर्चा तो है, लेकिन लेट से कि अगर इसकी वजह से फ्यूचर में बिजनेस आगे बढ़ सकता है, तो ये जो एक्सपेंस हम स्पेंड कर रहे हैं ये फ्यूचर में बेनिफिशियल है या नहीं है? Yes, sir. तो उसी Yes, तरह sir. लाइफ में क्या होता है, इन लाइफ ऑल्सो व्हेन यू इन्वेस्ट योर टाइम, तो या तो एक्सपेंस हो सकता है या तो एसेट हो सकता है। वन एग्जांपल, सपोज यू आर स्पेंडिंग योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, बराबर, फेसबुक वगैरह, तो दैट इज योर एक्सपेंस ऑफ टाइम या एसेट ऑफ टाइम? आप ये टाइम को किसमें Expense. convert कर Expense रहे of हो? time. यस, बिकॉज फ्यूचर में बेनिफिट उसका नहीं मिलेगा। बट सपोज यू आर लर्निंग सम स्किल, आपने कोडिंग सीख ली है, बराबर, या फिर कोई मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बुक रीड कर रहे हो, या फिर कुछ नया सीख रहे हो जो आप क्या है पैशन में, करियर में कन्वर्ट करने वाले हो, तो दैट विल बी कन्वर्जन ऑफ टाइम इनटू एक्सपेंस और एसेट? एसेट। एसेट। तो एक्सपेंस हो या एसेट हो, बोथ आर डेबिट बैलेंस, बट दोनों में फर्क थोड़ा सा है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ फोर्थ वन, बॉट मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर 10,000, मशीन आई है और 200 रुपया इंस्टॉलेशन का पे हुआ है, सो मशीन को इंस्टॉल करना जरूरी है, तो मशीन का अकाउंट डेबिट होगा, बट कितना? 10,200. Very good. Okay, machine account debit 10,000 plus 200. Installation के चार्ज भी इसी में होंगे 10,200. Now credit the giver. Who is the giver? Gada Electronics. गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। कितने का मशीन सेल किया गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने? 10,000. And 10,000. here paid word is there. To cash account. Yes, so to cash. How much? 200. So now in Bus. all the journal entry, debit and credit has to be equal. Are you getting the point? Automatically it will become equal. Okay, suppose if I want to write the reason, then I told you कि डेबिट में कुछ ऐसे ही 5 में से एक रीजन हो सकते हैं, एसेट बढ़ा या एक्सपेंस बढ़ा, ओके, या फिर जब आप इनकम, लायबिलिटी या कैपिटल उसे कम कर रहे हो। क्रेडिट में भी 5 में से ही कोई रीजन होंगे कि एसेट या एक्सपेंस कम हुआ, या इनकम या फिर लायबिलिटी एंड कैपिटल आप इंक्रीज कर रहे हो। सो गेटिंग द पॉइंट? तो यहां कैश क्रेडिट हुआ, सो व्हाट शुड आई राइट, विच इज द रीजन आउट ऑफ दिस 5 क्रेडिट करने के पीछे? कैन आई राइट A minus? A minus means what? Yes sir. एसेट हो Asset. गया उसकी वैल्यू। हाँ, एसेट डाउन हो गया। अच्छा, हियर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने क्रेडिट किया तो मैं L प्लस लिखूंगा। वाई L प्लस? Sir, on credit we क्योंकि have सर got फ्यूचर में उसको मतलब पैसे देने पड़ेंगे। सो कैन आई से दिस इज अवर लायबिलिटी?
यस Yes, sir. और ये गला इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे लिए कौन बन गया है? Creditor. Creditor. Okay. Now machine account debit, what is the reason? A plus A plus asset sir ऊपर हो गया down मतलब बढ़ गया है A plus. Okay. So are you cleared? अच्छा, fifth cycle for 2000. आप बताओ what should be the journal entry? cycle account. Debit. Cycle account to cash account. Yes. So it will be cycle का account debit to which account? Cash account. Cash account. And the amount is 5000. तो चारों चार एंट्री किसकी करेक्ट थी? All four. स्वयं की करेक्ट थी. Sir, my ओके तनेश, अमन एंड ध्यान. सर मेरी भी सारी करेक्ट थी, चारों चार. वेरी गुड. अमन. सर मेरी भी सर. Wow. So, accountancy is easy. The only thing is this, I'm not directly starting from boring theory. I'm also not starting from practical questions of journal, because first of all, we should know the things. Okay. And what I believe, एक बार आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो गए तो क्वेश्चंस आप खुद भी कर पाओगे. तो प्रैक्टिस ज्यादा हम कर पाएंगे. So now today we will cover other type of transactions, and let me think. So now today we are going to cover transactions of outstanding and prepaid. So I can write here unpaid, and opposite of unpaid is what? paid. Now there is another word for unpaid. It is called outstanding. Okay. And another term for prepaid is advance. So now there might be two situations. When I say unpaid, yeah, unreceived. So it depends on whether it is expense or whether it is for income. So please note, if expense is unpaid, unpaid expenses, another name is accrued expenses. Okay, accrued expenses. Accrued का मतलब है कि वो expense तो हो गया but pay करना बाकी है. Okay, so ऐसा हो सकता है. For example, let's say in India, accounts are getting closed on which date? कंपनी के अकाउंट्स के ईयर कभी पूरे होते हैं? On which? 31st May. No. March, 31st March. Yes, 31st March. So it is called financial year. It is called what? Financial year. तो याद रखिए, we have the concept of financial year, and we also have the concept of calendar year. Now, financial year is the period from 1st April. Right now, आपके लिए फाइनेंशियल ईयर होगा 1st April 21 से लेकर 31st March 22. आपके स्कूल का एकेडमिक ईयर इज सेम एज फाइनेंशियल ईयर. कैलेंडर ईयर मीन्स it starts from January and it ends on
दिसंबर। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? तो साल के एंड में फॉर एग्जांपल मार्च में जो भी लोगों ने काम किया है, तो कैन आई से सैलरी इज पेएबल टू देम? करेक्ट। बट generally you pay the salary on the same last date or in the next month? Next one. Next month. तो अकाउंट्स में देयर इज वन कंसेप्ट के सैलरी अगर लेट से मैंने 31 मार्च महीने की सैलरी अप्रैल के 5 तारीख को पे की, ऑलमोस्ट सब कंपनी सैलरीज नेक्स्ट मंथ में पे करती है पहले वीक में, बराबर। लेकिन कुछ ही ऐसी कंपनीज है कि जो सैलरी बहुत जल्दी पे कर देती है। इन्फोसिस शायद अपनी सैलरी उसी महीने की लास्ट तारीख से पहले या 1-2 दिन पहले पे कर देता है। ओके, सो नाउ अब आपसे सवाल ये है कि ये मार्च की सैलरी पे हुई है अप्रैल के 7 तारीख को, तो इसे मैं रिकॉर्ड कब करूं? ऑन विच डेट? 7 तारीख को रिकॉर्ड करूं या 31 मार्च को रिकॉर्ड करूं? व्हाट डू यू फील? 1st March. ओके, तो 7 तारीख को मैंने पे किया है, तो 7 तारीख को भी मुझे रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। बट करेक्ट आंसर इज दिस, आई नीड टू रिकॉर्ड ऑन बोथ द डेज। तो मैं है ना एग्जाम्पल के साथ आपको ये कंसेप्ट बताता हूं। ओके, सो लुक हियर, सैलरी फॉर March 2021 is paid on 7th April 2021। तो मैं पहले जर्नल एंट्री पास करूंगा 31 मार्च 2021 को। अच्छा, ऑन दिस डेट सैलरी मेरा खर्चा है, तो आई विल डेबिट द सैलरी अकाउंट। आई विल डेबिट, रीजन क्या होगा? बिकॉज ये मेरा एक्सपेंस है, खर्चा है सैलरी। बट टू कैश अकाउंट नहीं लिख सकते बिकॉज हमने पे कब किया है? अप्रैल में। तो क्रेडिट में एक स्पेशल अकाउंट हम लिखेंगे, दैट विल बी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। एंड ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट मेरे लिए लायबिलिटी है। सोचो कैसे, व्हाई इट इज माय लायबिलिटी? क्योंकि एज ऑन 31 मार्च ये मैंने पे सर नहीं हमको, किया क्योंकि है। सर हमको बाद में फ्यूचर में उनको सैलरी देनी है। यस, तो यहां पर मैं नरेशन लिख सकता हूं, बीइंग सैलरी पेबल, बीइंग सैलरी पेबल। ओके, तो एक चीज हमेशा याद रखो, जो खर्चा अनपेड है, आपने पे नहीं किया है, इसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं कि इट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये हमारे लिए एसेट है या लायबिलिटी है? व्हाट इज दिस? Liability. इट इज द लायबिलिटी। ओके, सो मुझे 31 मार्च को ये एंट्री पास करनी है। अकाउंटिंग में भले पे नहीं किया लेकिन खर्चा कंफर्म्ड है, यस और नो? यस, सैलरी Yes, sir. कंफर्म, काम तो किया था मार्च में। और मैं क्या करूंगा नेक्स्ट ईयर में, जब मैं इसको पे करूंगा 7th अप्रैल को, तो अगेन आई विल पास द एंट्री। अब ये जो लायबिलिटी जब मैं पे करूंगा तो कैंसल करनी है, हाँ के ना? आई नीड टू कैंसल। सो रिकॉर्ड किया तो क्रेडिट किया, और लायबिलिटी को अगर कम करना है तो डेबिट करना होगा। तो मैं लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट? when I am paying, so I will write here
टू कैश अकाउंट। हाँ, लेकिन चलो सैलरी बैंक में जमा की तो टू बैंक अकाउंट। प्लीज नोट कैश और बैंक इज सेम। चलो एक काम करते हैं, अभी कैश हमारे लिए ज्यादा इजी है, कन्वीनियंट है, तो टू कैश अकाउंट। सो ये क्रेडिट एंड डेबिट अल्टीमेटली इट विल गेट कैंसल, यानी हमारी एंट्री जनरली व्हेन वी पे सैलरी, तो कैन आई से सैलरी टू कैश। अगर एक ही एंट्री पास करते, हम एक साथ ही सैलरी पे कर देते, तो माय एंट्री विल बी सैलरी टू कैश। तो जब हम एक्सपेंस को लेट पे करते हैं तो जर्नल एंट्री एक पास करेंगे या दो पास करेंगे? सर हेलो, 2 पास करेंगे। दो पास करेंगे। सो आई होप यू आर क्लियर। तो जब भी कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो और मुझे रिकॉर्ड करना हो, तो मैं इसका शॉर्टकट भी आपको बताता हूं। ओके, तो व्हाट इज द शॉर्टकट एंट्री जो मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूं, और मैं उसे हाईलाइट भी करूंगा। तो जब भी कोई खर्चा रिकॉर्ड करना बाकी हो, तो एंट्री इज एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट टू outstanding expense account. So whenever any expense is payable, पे नहीं हुआ है बट वो एक्सपेंस हुआ है, तो व्हाट इज द एंट्री? एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। और अगर लेट से क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया है कि भाई सैलरी पेबल, तो सैलरी पेबल मीन्स सिर्फ पहली एंट्री ही पास करनी है, डोंट पास दिस एंट्री। आर यू गेटिंग? अगर क्वेश्चन में कहा है कि सैलरी इज पेड, तो सिर्फ सेकंड एंट्री। सेकंड में भी इफ सैलरी इज पेड तो आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं लिखेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, मैंने ये पूरी सिचुएशन आपको बता दी कि व्हेन एक्सपेंस इज आउटस्टैंडिंग, तो व्हेन वी वांट टू रिकॉर्ड क्या एंट्री होती है, एंड व्हेन वी पे क्या एंट्री होती है। सो आर यू क्लियर अबाउट द कंसेप्ट्स? यस और नो? यस सर। Yes, sir. सो आई विल गिव यू द टाइम फॉर राइटिंग, बट अभी सिर्फ समझने के ऊपर ध्यान दो। सो सिमिलरली वी कैन हैव इनकम। नाउ एक काम करूंगा कि एक्सपेंस और इनकम को मैं अलग अलग क्या है लिखाऊंगा, तो दैट वुड बी बेटर। चार्ट तो एक ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो ये चार्ट्स कोई भी बुक में नहीं दिए हैं। ओके, सो हर चीज जो मेरे माइंड में है, जैसे मैं समझता हूं, तो इजी से इजी करके मैं आपको बता रहा हूं। सो हियर आई विल राइट एक्सपेंस एज वेल एज इनकम। अब देखो ये इसका ऑपोजिट है, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। ओके, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने कुछ एडवांस पे कर दिया सेलर को। सपोज यू वांट टू बाय वन बुक एंड यू हैव ऑलरेडी पेड एडवांस टू द सेलर, बट वो गुड्स अब नहीं आ सकती बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल। तो आप अपने पैसे रिटर्न ले सकते हो या नहीं फ्रॉम द सेलर? यस Yes, सर, ले sir. सकते हैं। So if you pay something in advance, that is your asset or liability? सर लायबिलिटी। Asset. सर Why एसेट, asset? क्यों asset? क्योंकि कैसे सर सर? हमें फ्यूचर में हम उसे अगर सामान ना ले तो हम अपने पैसे भी वापस मांग सकते हैं। हाँ, whenever you pay advance, if you don't receive your goods, can I say you can recover your money? For यस example, सर। आपने ट्यूशन में पे कर दिया है फुल ईयर का, लेकिन 3 महीने के बाद अब ये सर ने अपना घर चेंज कर दिया है, तो कैन यू टेक रिमेनिंग अमाउंट बैक? हाँ के ना?
बाकी पैसे रिटर्न हाँ ले सर। सकते हो। यस, हैंड, तो ये आपके लिए Yes. क्या है? एसेट है। एसेट मीन्स फ्यूचर में पैसे मिल सकते हैं, तो दैट इज योर एसेट। ओके, तो इसका दूसरा नाम है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, प्रीपेड एक्सपेंस या एक्सपेंस पेड इन एडवांस। ओके, चलो अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, एक एग्जांपल मान लेते हैं। सैलरी ऑफ February was paid along with, चलो ये नहीं, थोड़ा अलग करता हूं so that you can understand in easy way. So I write like this. हाँ, सैलरी की जगह पर मैं चलो ये इजी होगा, सैलरी ऑफ 2 months April and May is paid on 31st March 21। तो यहाँ पे अप्रैल एंड मई की सैलरी हम जल्दी पे कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी क्या जर्नल एंट्री पास होगी। नाउ ऑन 31st मार्च हमने तो सैलरी पे कर दी, तो वन थिंग इज वेरी क्लियर, कैश इज गोइंग आउट। ये तो क्लियर है सबको, बट याद रखिए एसेट को मुझे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि मैं एडवांस में अप्रैल एंड मई की सैलरी अगर मैं मार्च में पे करता हूं, देखो दिस इज द मंथ ऑफ मार्च, तो ये एडवांस सैलरी कहा जाएगा। विच सैलरी? एडवांस सैलरी। सो व्हाई आई एम डेबिटिंग एडवांस सैलरी? ये एसेट है या लायबिलिटी है? ये मेरा एसेट है, एसेट बढ़ गया। एंड कैश क्रेडिट, क्योंकि मेरा एसेट कम हो गया। सो दिस इज माय जर्नल एंट्री। लेकिन इस जर्नल एंट्री की दूसरी इफेक्ट भी होगी। ओके, चलो एक काम करता हूं, मैं सिर्फ अप्रैल लिखता हूं, सो आपको क्या है, इजी होगा। तो कैन आई से अप्रैल का जब महीना खत्म होगा, तो तब जिसको आपने एडवांस सैलरी पे की थी, क्या उसको फिर से सैलरी पे करोगे? No. नो। तो इन अदर वर्ड्स, जब अप्रैल फिनिश होगा, तो ये जो एडवांस सैलरी है बराबर, उसे कैंसिल करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रैल के महीने में सैलरी जो भी होगी वो तो मेरा एक्सपेंस है, तो वो मेरा एक्सपेंस बड़ा है, तो आई विल राइट ई प्लस। तो ये जो एडवांस सैलरी है, अब वो एडवांस नहीं रही, क्योंकि अप्रैल का महीना हो चुका है, उसने बदले में काम कर लिया है बराबर। सो यहाँ पर ये रखेंगे या ये एसेट को कैंसिल करेंगे? ये Cancel. एसेट को हम कैंसिल करेंगे। ओके, सो इस वे से अकाउंटिंग होती है। यानी इसका भी क्या है कि मैं शॉर्ट में बताऊं कि व्हेनेवर यू पे सैलरी इन एडवांस, कोई भी एक्सपेंस एडवांस में पे करोगे तो पैसे जाएंगे, और डेबिट एक्सपेंस को करना है या एक्सपेंस पेड इन एडवांस को करना है? एक्सपेंस पेड इन एडवांस। Paid in advance. यस, बिकॉज वो आपका एसेट है। ऐसा क्यों एसेट है कि अगर ये एम्प्लॉय भाग जाता है, अप्रैल के महीने में काम नहीं करता है, तो क्या आपने एडवांस में दिया हुआ पगार उसे वापस मांग सकते हो? यस 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 सर। सर। यस, ओके। और जब उसने काम सर कर लेके दिया भाग हो, जाए तो कैसे मान लेंगे?
यानी वो बात अलग है कि आप मांग तो सकते हो, लीगली कोर्ट में भी जा सकते हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, yes sir. हाँ। सो एंड 30 अप्रैल, अच्छा मांगने का सबसे आसान तरीका बताऊं? उसके घर पे जाओ बराबर, या 2-3 आदमी को छोड़ दो, अगर वो पैसा नहीं पे करता है और आप क्या ना कुछ भाई को अपॉइंट कर सकते हो, कोई भाई आपकी हेल्प कर सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कौन से भाई की बात Yes कर रहा sir. हूं मैं? हाँ, बैंक वाले भी Yes, भाई sir. रखते हैं, पता है, रिकवरी लोन के पैसे नहीं देते तो आपके घर पे वो भाई लोग का फोन आ जाता है। ओके, वसूली वाले, रिकवरी वाले, तो बैंक भी ऐसा काम वसूली करती भाई. है। हाँ। सो नाउ अब इसको शॉर्ट में मुझे समझाना हो तो याद रखिए, इसकी भी एंट्री को हम शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब इसमें देखो, जब हमने एडवांस में पे किया है तब ये एंट्री होती है, बराबर। सो दिस एंट्री इज इंपॉर्टेंट। टू विच अकाउंट? कैश अकाउंट। ये ऊपर वाली एंट्री है ना, वो इंपॉर्टेंट होती है, ये एडजस्टमेंट एंट्री है, ये जब एडजस्ट करते हैं वो है। तो ओरिजिनली जब भी कोई खर्चा एडवांस में पे किया तो डोंट डेबिट एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट विच अकाउंट? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। Expense account. So I hope you are clear about this. अब देखिए only 3 minutes are there, आप rejoin करो, ओके, और भी सेशन होगा, so please rejoin. सर लेकिन भाई लोगों को भी रखने में पैसा जाएगा ना? हाँ, लेकिन वो वसूली करके देंगे ना, थोड़ा कमीशन उसको दे देना। 100 रुपया कलेक्ट करते हैं, 10% कमीशन दे दो तो भी बाकी तो काम हो गया। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके, Yes sir. नाउ लुक हियर, अब हम क्या है बात करेंगे इनकम की। सो इफ इनकम इज आउटस्टैंडिंग तो इट इज कॉल्ड इनकम ड्यू। ड्यू का मतलब है रिसीवेबल, तो इट इज कॉल्ड इनकम रिसीवेबल। ओके, या एक और नाम है, इट इज कॉल्ड अक्रूड इनकम। ओके, या एक और नाम है आउटस्टैंडिंग इनकम। देखो मीनिंग सेम है, इनकम ड्यू मिलना बाकी है, ड्यू मीन्स रिसीवेबल, अक्रूड का मतलब है सेम, मिलना बाकी है। अक्रूड वर्ड इंडिकेट्स कि पेमेंट नहीं हुआ है, एंड आउटस्टैंडिंग इनकम मीन्स अनपेड, यहां पर अनरिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड, इनकम नॉट रिसीव्ड। सो आउटस्टैंडिंग एंड अक्रूड का मीनिंग सेम होता है। सो आई होप यू आर एबल टू गेट दिस, और प्रैक्टिकली समझते हैं। लेट से अभी यहां पर हम ऐसा मानते हैं कि हम मकान के किराएदार है। ओके, तो मैं यहां पर लिखता हूं, सॉरी, हम मालिक है क्योंकि इनकम की हम बात कर रहे हैं। सो रेंट मिलना बाकी है, सो आई एम राइटिंग हियर के रेंट फॉर मार्च is received on 7 अप्रैल। आपके घर पे अगर कोई किराएदार है तो कैन आई से वो तो नेक्स्ट महीने के ही फर्स्ट वीक में पैसा पे करता है, हाँ के ना? Yes, sir. Yes sir. तो जर्नल एंट्री मुझे रिकॉर्ड तो करना होगा बिकॉज 31 मार्च को
मैं अपनी बुक्स क्लोज करता हूं, हर एक्सपेंस हर खर्चे को रिकॉर्ड करना है, भले मिलना बाकी हो या पे करना बाकी हो। तो यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि इनकम जो मिलनी बाकी है फ्यूचर में मिलेगी, वो एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट। कैसे एसेट क्यों है? सर फ्यूचर में हमको मिलेगी ना इनकम। यस, और अगर एसेट है तो एसेट को तो हम डेबिट करते हैं, हाँ कि ना? यस। यस सर। Yes, sir. तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा कि इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, यानी रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। यानी रीजन भी समझो, रेंट रिसीवेबल एसेट है, ए प्लस मेरा एसेट इंक्रीज हुआ है, टू रेंट ये मेरी इनकम तो है, आई नीड टू रिकॉर्ड द इनकम, इसीलिए आई प्लस। लेकिन जब नेक्स्ट महीना आ जाएगा 7 अप्रैल को, तो फिर से मुझे एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। यस, तो 7 अप्रैल को जब पैसा मिल जाएगा, लक्ष्मी जी पैसे आ रहे हैं, तो विच अकाउंट डेबिट? कैश। कैश। और अब ये रेंट आपके लिए रिसीवेबल रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। इसको रखेंगे या कैंसिल कर देंगे? कैंसल। यस, Cancel. क्योंकि उसने तो पैसे दे दिए। ओके, तो टू रेंट रिसीवेबल। एंड अब देखो रीजन, ये मैं क्रेडिट कर रहा हूं ए माइनस, ये एसेट को मैं क्लोज कर रहा हूं, कैंसिल कर रहा हूं, और यहां पर मैं क्या करूंगा? Income plus. Sorry, ए asset plus. प्लस, क्योंकि ये एसेट बढ़ रहा है। So I hope you are getting the point. बराबर? Yes, sir. ओके, लुक हियर, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, तो शॉर्टकट क्या होगा? सो इनकम जब मिलनी बाकी हो, तो विच अकाउंट डेबिट? इनकम रिसीवेबल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट वी विल डू विच अकाउंट? To cash. नो, पहली एंट्री इंपॉर्टेंट है, दूसरी एंट्री तो कभी कभी पास करते हैं, फर्स्ट एंट्री इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द एंट्री? इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ओके, कैश का अकाउंट इसमें नहीं आता है जब आउटस्टैंडिंग है, बिकॉज आउटस्टैंडिंग मीन्स पेमेंट हुआ ही नहीं है। आर यू क्लियर? हाँ के ना? यस सर। ओके, एंड लास्ट वन हम समझते हैं, इट इज इनकम। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीपेड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सो इट इज कॉल्ड एडवांस इनकम। ओके, या इसको हम कहेंगे इनकम रिसीव्ड बट नॉट ड्यू। नॉट ड्यू का मतलब है कि वो इनकम का टाइम नहीं आया है रिसीव करने का, लेकिन रिसीव हो गई है। ओके, सो इसका एक और नाम है प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम। सो नाउ इफ इनकम इज रिसीव्ड इन एडवांस, बराबर, एक एग्जांपल मान लेते हैं, रेंट का ही एग्जांपल लेते हैं कि रेंट ऑफ अप्रैल 21 was received on
31st March 21, इट इज पॉसिबल? तो मुझे बताइए 31 मार्च को एक चीज तो पक्की है कि मेरे पास अप्रैल का रेंट आया है, तो विच अकाउंट डेबिट? कैश। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि ये आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। लायबिलिटी। वेरी गुड। ये क्यों है लायबिलिटी? सर क्योंकि अगर वो घर छोड़ के चला जाएगा तो फिर हमें उसे पैसे देने। यस। मान ले कोई ट्यूशन, लेट से इफ यू आर पेइंग फीस टू मी, बराबर, मुझे एडवांस में आपसे पैसे मिल चुके हैं और मैं कोई रीजन से लेट से गांधीधाम छोड़ देता हूं, तो मेरे लिए वो पैसे लायबिलिटी रहेंगे बिकॉज आई वांट टू पे बैक। आपने एडवांस में अगर पैसे पे किए तो डोंट फील दैट कि एडवांस में इन पैसे आ गए तो वो हमारी इनकम है या एसेट है। ये आपकी लायबिलिटी है क्योंकि आपको सर्विस पे करनी बाकी है। आप सेलर हो, किसी ने एडवांस में पैसे दिए, आप वो चीज जब तक उसे रिटर्न नहीं करोगे आपके लिए वो क्या रहेगा? लायबिलिटी। क्लियर? सो लायबिलिटी को अगर रिकॉर्ड करना है तो क्रेडिट करना होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? यहां पर रेंट है तो मैं यहां पर लिखूंगा कि टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। इसको हम ये भी बोल सकते हैं एक और नाम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो यहां पर मैं लिखूंगा टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। देखो ये दोनों सेम है लेकिन बड़ा लिखने से ना चीज एकदम क्लियर हो जाती है। तो टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। रीजन समझते हैं। कैश डेबिट, वाई कैश डेबिट? एसेट बढ़ गया। एंड ये क्रेडिट क्यों हुआ? बिकॉज ये हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ गई एंड वी नो दैट लायबिलिटी जब बढ़ती है तो वी नीड टू क्रेडिट। अब सवाल ये है कि वो दिन आ गया है विच इज अप्रैल। मान लेते हैं 7 अप्रैल को उसने पैसे पे। 7 अप्रैल, अच्छा ये अप्रैल की रेंट है तो अप्रैल का एंड हम लिखेंगे। सो ऑलरेडी उसने तो पे कर दिया है तो 7 अप्रैल की जगह पर आई विल राइट हियर 30 अप्रैल। अप्रैल में वो हमारे घर पे रहा था। तो नाउ अप्रैल में जब आपको क्या है इनकम होगी तब आपको इनकम रिकॉर्ड करनी है आई प्लस। इनकम अप्रैल की रेंट की है बट कैश नहीं लिखोगे, कैश वॉज ऑलरेडी रिसीव्ड। तो क्या करोगे? डेबिट किसको करोगे? ये वाले अकाउंट को क्लोज कर दोगे। सो व्हाट यू विल राइट? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस का अकाउंट डेबिट। एंड व्हाट यू हैव डन, ये लायबिलिटी को आपने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। एसेट क्लोज कर दे। क्लोज कर दिया। इट इज नॉट एसेट, लायबिलिटी को क्लोज कर दिया। ओके तो शॉर्ट में अगर मैं बताऊं कि जब भी एडवांस में कोई इनकम के पैसे मिले तो व्हाट वी डू, कैश मिला है तो कैश को डेबिट करो बट क्रेडिट क्या होगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। in advance account. So this is the shortcut. देखो एडवांस वाले में कैश अकाउंट आता है। So what I have done practically आपको ये बताया है कि अकाउंटिंग is related with the practical life. Okay? So ये चार्ट एकदम प्रॉपरली आप शायद देख पा रहे हो। मैं अभी स्क्रीन शॉट शेयर करता हूं एंड आई विश दैट कि आप इसको
अच्छे से रिवाइज करोगे। एंड हियर आई शेयर विथ यू क्या आप ये लिख पाओगे होमवर्क में? यस और नो? Yes, sir. Yes. के और एक क्वेश्चन, सर क्या लिखना है? ये चार्ट और क्वेश्चन में जर्नलाइज द बिलो ट्रांजेक्शन, ये क्वेश्चन भी। और फर्स्ट वन, रेंट पेड इन एडवांस ₹5,000, क्या एंट्री है आप होमवर्क में पास करोगे। देन इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ, चलो मंथ की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेबल ₹2,000। थर्ड वन, received ₹50,000 from customer as advance for goods, उसने गुड्स के लिए एडवांस दिया है। एंड कमीशन of ₹2,000 is not yet received, अब तक रिसीव नहीं हुआ है। ओके, फिफ्थ वन, insurance expense. You know, in business we know insurance. So insurance paid in advance ₹3,000. Sixth one, एक ही मिनट, हाँ मैं क्या है माइंड में सोच सोच के आपको बताता हूँ कौन से ट्रांजेक्शन्स कवर हुए हैं। टेलीफोन बिल इज पेबल ₹500। ओके, सेवंथ वन, ₹4,000 received from customer but goods are not delivered। ओके, उसको गुड्स देनी बाकी है। एंड द एट्थ वन, brokerage
of rupees 12,000 is receivable. अच्छा, अब देखिए ये क्वेश्चन मैं यहां पर लिखता हूं, and I'm also sharing with you. तो फिर आप मुझे बताओ, will you be able to pass these journal entries? Yes, sir. यस सर। सो पहले ये बराबर से रिवाइज करना एंड देन ट्राई टू पास दिस एंट्री। और मैं बताऊं, ये जो एंट्रीज आप सीख रहे हो ना, तो काफी स्टूडेंट्स के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते। ओके, सो दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। सो अकाउंटिंग में 11th का बेस जिस स्टूडेंट का वीक होता है वो 12th में भी अच्छा नहीं कर पाता, बिकॉज 12th में अकाउंटिंग का लेवल और बढ़ जाता है। सो ये सब बेसिक्स है, बेसिक्स के ऊपर ध्यान दो। जर्नल एंट्री या अकाउंटिंग प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेटेड है, तो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंट्रीज को मेमोराइज नहीं करता है, वो कंसेप्ट समझता है। और एक बार कंसेप्ट समझ लिया तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन एंट्रीज। सो देखो, हर एक क्वेश्चन मैंने टेक्स्ट बुक से नहीं, मैंने खुद के क्वेश्चन बनाए हैं फ्रॉम प्रैक्टिकल लाइफ, और हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे। बराबर, तो फिर कल मिलते हैं फिर से 9:15 को। सो ओके सर। ओके, सो बाय फॉर टुडे। एंड हम कुछ सर ये हमको भेजना है आपको। भेजोगे तो अच्छा है, बराबर ग्रुप में शेयर कर लो तो एक दूसरे की Okay, sir. मिस्टेक फाइंड कर पाओगे। और कल तो हम आंसर डिस्कस करेंगे एनीवे। ओके, चलिए बाय बाय। Bye, sir.